look here. So here, this boy, what he is doing? It's a electric kettle, ठीक है? Electric kettle है, इसमें पानी डाला हुआ है. What he is doing? अभी पानी ज़्यादा गर्म नहीं है. It's lukewarm. He is putting his hand, okay, in the kettle, and what he feel कि ये थोड़ा गर्म है. Okay, here you can see उसका जो है हाथ अंदर जा रहा है और उसको थोड़ा वो गर्म लग रहा है, and he immediately removed his hand. ठीक है, उसने अपना हाथ निकाला. बट ही स्टैंडिंग हियर, अभी वो यहीं खड़ा है, कहीं नहीं गया. ठीक है, अब जब वो साथ में इसके खड़ा है एकदम क्लोज, ठीक है, नाउ स्टीम इज कमिंग, यू कैन सी स्टीम इज कमिंग आउट ऑफ दिस केटल, इलेक्ट्रिक केटल, बिकॉज वाटर इज बॉइल्ड नाउ, पानी उबल चुका है, लेकिन उसको गर्मी लग रही है. ही इज फीलिंग हॉट. व्हाई ही इज फीलिंग हॉट? Raise your hand. Who can tell me why he is feeling hot? Now his hand is not inside the water, but still he is feeling hot. What is the reason? Who can tell me? Yes, girl team or boy team? कौन बताएगा? From girls team or boys team? Who is going to tell? Raise your hand. It's a simple question that I am asking you. Why this boy is feeling hot, even though his hand is not inside the water? क्यों इसको गर्मी लग रही है? अभी उसका हाथ अंदर नहीं है केटल का. स्टिल ही इज फीलिंग हॉट. ओके ओके, आई एम गोइंग टू आस्क अ गर्ल फ्रॉम द सेकंड बेंच मिडल, जो बीच में बैठी है लड़की. बेटा आओ तो, स्टैंड अप. यस यस बेटा, आप नहीं, सेकंड बेंच बीच में जो लड़की बैठी है वो गर्ल्स. यस, स्टैंड अप, कम फॉरवर्ड. यस बेटा, आगे आओ. मैम बिकॉज जो वाटर है वो गर्म है और उसको गर्मी फील हो रही है, और जो स्टीम है वो बाहर. We can say because hot steam is coming out and he is standing nearby. That's why he is feeling hot. है ना? सामने खड़ा है इसीलिए. इवन आपके घर में जब आपकी मम्मा या कोई भी जो है घर पे चपाती बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, इफ यू स्टैंड नियर बाय, अगर आप साथ में खड़े होंगे, डू यू फील हॉटनेस और नॉट? वाई सो? आपका हाथ तो गैस पे नहीं है, बट स्टिल यू फील द हॉटनेस. वाई? What is the reason? Okay, we will come to the reason later on. अभी हमने सिर्फ ये समझा कि हमें गर्मी लगती है अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट के सामने भी खड़े हों. ओके बेटा, sit down, sit down. So everyone now look carefully. जो भी इस लड़के ने किया यहाँ पर, I am going to show you this here. Okay, मैं आपको यही करके यहाँ पर दिखाने वाली हूँ. ठीक है? So everyone look here carefully. ठीक है? So can you see this kettle here? Okay, that's good. So you can see this kettle. Now I am turning it on. Okay, मैं इसको turn कर रही हूँ on. You can see it's now red. It's working. ठीक है? Now after few seconds, I'm going to put my hand in this water. You can see the water also, है ना? You can see. Yes. So I am putting my hand and it's little bit hot. Lukewarm hot. ठीक है? ज़्यादा गर्म नहीं है, अभी हल्का है तो मुझे गर्म लग रहा है. Now it's getting hot. ठीक है? तो it's getting hot. My fingers are getting hot. ठीक है, ये भी गर्म हो गया, काफी गर्म हो गया. Now I'm covered. After some time, you will notice from here this thing spout. You can see that steam is about to come. तो आप अभी देख सकते हो कि आने वाली है steam. And can you? Yes. Everyone, please notice. Even from here, can you see the steam is coming out? No. Okay, you're not able, just give me a few minutes. थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी तो you are able to see. Yes, करें. Many of them yes. Let me zoom it out.
Okay, might be your now. Now I think it's more evident now, है ना? आपको clearly दिख रहा था हमें जब हमने open किया. Do you think now I can put my hand in this? Why so? It's hot now, boiling, so I can't put my hand in this, है ना? But because I'm standing here nearby this hot water, okay, steam is coming out, so I'm also feeling the hotness of this water. ठीक है, मुझे भी यहाँ पर गर्मी लग रही है. My hands are getting warm. ठीक है, just like the boy that we have seen. ठीक है. Now I'm switching it off. Okay, and now let's go back to our topic. So we have seen or observed two things. क्या हमने चीज ऑब्जर्व की बेटा कोई बता सकते हैं? What we have observed. Yes. अब फर्स्ट केस जो था, if we talk about the first case, ठीक है? In the first case, what happened? He was able to put his hand inside the water because it was lukewarm, but still, उसका जो हाथ था, उसमें गर्म पानी की जो हीट है, वो इसको फील हुई. Even I also feel the same thing as I show you. ठीक है? Now, can you tell me, or first you tell me, आपने चैप्टर कर लिया, heat is done in your school? Yes. So can you tell me what mode of heat transfer is here? Okay, just raise your hand. Those who know, just raise your hand. जिसको आता है सिर्फ hand raise करे, ठीक है? Yes, बेटा. Those who know, just raise your hand. The mode of heat transfer that you can see here, as we put, yes, last, I think third or fourth bench, last girl or boy. Yes, beta, जिसका hand raise a girl. Yes. Convection. Okay, you're saying it's convection. Okay. Who else? Who else? बैठो बेटा, that's good. Sit down. और कोई? और कोई बताना चाहेगा? Is she right? Okay. So let me tell you. ठीक है, ध्यान से सुनो है सभी. ध्यान से सुनना है. बेटा अब इसको ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि जो आंसर था वो गलत था, इसलिए ध्यान से सुनना है. अब आप सोच रहे होंगे पानी की बात हुई है तो कन्वेक्शन ही होगा. पानी की बात तो मैंने की नहीं है. व्हाट आई सेड, हमने पानी के अंदर हाथ डाला, मेरे जो हाथ है उसमें गर्मी फील हुई है. माई हैंड फेल्ट द हॉटनेस. आई डिडंट से अबाउट द वाटर कि पानी क्यों गर्म हुआ. मेरा क्वेश्चन था मेरे हाथ में जो है पानी की गर्माहट कैसे आई. ठीक है, दैट वाज माय क्वेश्चन. ठीक है, जब हमने क्वेश्चन का आंसर देना है, थिंक अबाउट दिस, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है, पूछा क्या गया है. अब देखो, अब इसमें क्या था, यहाँ पर पानी था और हमने अपना हाथ इसके अंदर डाला. ठीक है, नाउ फिंगर्स, जो हमारी मेरी फिंगर गई थी अंदर पानी में, उसमें मुझे गर्मी फील हुई. आई फेल्ट द हॉटनेस देयर. ठीक है, अब जो यहाँ पर मुझे हॉटनेस फील हुई, इट इज ड्यू टू, if I say conduction, do you think is it right? How many of you agree that it's due to conduction? Raise your hand. How many of you agree with this, that it is due to conduction? Yes, few student has raised hand last के, है ना? बाकी आगे जो बैठे हैं, what's your opinion? Don't turn back. Don't turn back. किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना. I am here only. पीछे नहीं हूं मैं. ठीक है, तो बताओ बेटा,
कंडक्शन के साथ कौन कौन अग्री कर रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन. रेज योर हैंड. ओके, 1 2, ठीक है. Now, how many of you agree if I say it is due to convection? It is due to convection. Okay, one student I can see. ठीक है. Last बे की बजाय, how many of you agree that it is due to radiation? Okay, my students are saying it is due to radiation. Okay, hands down. अब ये जो आगे के 3 बेंच गर्ल्स और बॉयज के बैठे थे, बेटा आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ? ये 3 जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर आपने नहीं पढ़ी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन? आपने किसी पे भी हाथ नहीं रेस किया? या फिर आपको अभी ये नहीं पता कि होता क्या है? आर यू अवेयर ऑफ दीज टर्म्स? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस? यस गर्ल्स एंड बॉयज, फर्स्ट 3 जो बैठे हैं बेंचेस में, से यस और नो. आर यू अवेयर ऑफ दीज टर्म्स? यस और नो? So why didn't you raise your hand? आपने क्यों नहीं अपना हैंड रेज किया? ना रेडिएशन, ना कन्वेक्शन, ना कंडक्शन. इट मीन्स यू आर नॉट फुली अंडरस्टूड दिस. आपने नहीं पढ़ा. इसको ध्यान से पढ़ो बेटा. दिस इज द बेसिस ऑफ थिंग. आगे आपने केमिस्ट्री में और उसमें बहुत पढ़ना है ये चीज को. ठीक है. इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम योर 7th स्टैंडर्ड. You are going to study this in your 9th class, 10th class, so on. ठीक है. ध्यान से सुनो इसे. अब बेटा यहाँ पर जो हमारा हैंड है और वाटर है, इसके बीच में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कंडक्शन. रीजन, कंडक्शन किस कारण होता है, कैसे होता है? हमें पता है हर एक चीज किसकी बनी है, और made up of atoms, molecules. Yes, yes. And matter सबको पता है. Everyone is aware of the term matter. Matter is what? Anything that occupies space and has mass. Even we humans are also matter, क्योंकि हम जगह घेरते हैं और हमारे पास वजन भी है. ठीक है. अब जो ये मैटर है मॉलिक्यूल्स का बना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का. ठीक है. अब जस्ट इमेजिन ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे सपोज कर लो कोई हमारे पास आयरन रॉड है. ये हमारे पास एक आयरन रॉड है येलो कलर में. ये इन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. अब क्या होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको बर्न करना स्टार्ट करूं, हीट करना स्टार्ट करूं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो हीट है it will firstly going to heat this very first molecule. इसको हीट करेगा सबसे पहले. इसको जैसे ही हीट करेगा, जस्ट इमेजिन दिस इज द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल. इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वाइब्रेट अपनी ही जगह में, हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर. इट जस्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट सेम पोजीशन. ऐसे वाइब्रेट करेगा. मोबाइल सबको पता है ना, वाइब्रेट करता है एक ही जगह ऐसे. ठीक है. So just like that, it will vibrate. अब उस वाइब्रेट से क्या होगा, इसके जो जब ये हीट हो जाएगा, it will pass that energy to the next molecule. Then it will vibrate. It starts vibrating. Then it will transfer this heat to this. So this process of transferring heat will go on until the last molecule will get the heat. और जब इन सबको बराबर हीट मिल जाएगी उसके बाद तो कुछ होगा नहीं. ठीक है. सो कंडक्शन में क्या होता है बेटा, ये जो क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करते हैं. दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर. ओके, दे आर हियर ओनली. एंड यू कैन सी दिस इन द सॉलिड. नाउ टेल मी, आवर हैंड इज सॉलिड और लिक्विड? Solid. And I felt heat where? In my hand. ठीक है. मुझे अपने हाथ पे जो है गर्मी लगी. तो ये क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन था हाथ क्यों लेके, पानी को लेके नहीं था. सो सॉलिड मीन्स कंडक्शन. एंड हाउ इट हैपन, क्यों मुझे यहाँ से जो है यहाँ की तरफ जो है हीट पास होते नजर आई? बिकॉज ऑफ कंडक्शन. So it was because of conduction. Is it clear how conduction happened?
यस। Yes. अगर मैं बेंच के जो बॉय है, सेकंड बेंच बॉय, ठीक है, जो कॉर्नर में बैठा है, उसके पास पेन या पेंसिल है? डू यू हैव पेन और पेंसिल? हाँ, बेटा वहीं बैठ के नेक्स्ट बच्चे को दो, अपने साथ वाले बच्चे को दो पेन या पेंसिल। नो नो, अपने साथ इस साइड, जो आपके एडजस्टेंट बैठा है। अब ये आगे को देगा, थर्ड वाले। हाँ, अब ये लास्ट वाले को दे। ये क्या हुआ? ये बेटा कंडक्शन हुआ। पहले से लास्ट तक हीट ऐसे ही ट्रांसफर होती है। इट पास ऑन लाइक दिस जब तक लास्ट तक नहीं चली जाए। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब आपने खुद करके देखा। क्लियर? पासिंग द पार्सल लाइक गेम, ठीक है, जैसे पासिंग द पार्सल गेम होता है ना, जस्ट लाइक दैट। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमने नेक्स्ट कहा था, ये जो बच्चा था, ओके, he was standing near the kettle and he was feeling hot. Why? I didn't tell you the answer that time. The reason is the steam that is coming out of this burner, or we can say kettle. अब जो kettle से जो आ रही है, ओके, वो इसको गर्मी इसको इससे लग रही है। अब ये क्या होगा? किस कारण होगा? What is the reason of this? Is this convection or radiation now? Yes? Is this convection or radiation? ड्रॉप्स दिख रहे हैं? कैन यू सी द टाइनी ड्रॉप्स हियर? कुछ बबल्स है। अब इसका क्या मैकेनिज्म है कन्वेक्शन का, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है हमने ये चीजें। जो कन्वेक्शन है, इट मोस्टली हैपेंस इन गैस और लिक्विड्स। गैस और लिक्विड्स में कन्वेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्शन। हमारे पास अगर ये एक पैन है, इसमें हमने अगर पानी डाला हुआ है, इफ वाटर इज देयर एंड वी ट्राई टू हीट इट, ठीक है, हम इसको हीट कर रहे हैं। अब देखो नीचे जो है, सबसे पहले जो एकदम कांटेक्ट में नीचे वाला सरफेस है, इट इज गोइंग टू टेक हीट, ठीक है, ये सबसे पहले गर्म होएगा। अब जब कोई चीज गर्म होती है, वो एक्सपैंड होती है, यस और नो? कोई चीज जब बर्न होती है, वो एक्सपैंड होती है ना, पहले वो एकदम एक्सपैंड हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट? वो हल्की हो जाती है। अगर आपने कभी कोई चीज जलाई होगी, तो यू हैव नोटिस दैट पहले जो उसका वेट होता है, उससे वो लाइटर हो जाती है, यस और नो? तो अब जो ये नीचे जो बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, अब वो क्या हो गए? एक्सपैंड हो गए, एंड ऑल्सो दे आर नाउ लाइटर, दे आर लाइटर नाउ। अब कोई चीज जब हल्की होती है, वो नीचे नहीं सेटल होती, दे विल मूव अपवर्ड। जो चीजें नीचे है हल्की है, वो ऊपर को जाएंगी। सो नाउ दिस मॉलिक्यूल विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर को जाएंगे लाइक दिस। बेटा इसको साथ साथ कर लो, स्टोरी ना सुनो, ठीक है। इट विल मूव, दीज मॉलिक्यूल्स विल मूव लाइक दिस, एवरीवन ड्रॉ दिस। ऐसे याद नहीं रहेगा, कल फिर पूछूंगी, सब ऐसे ब्लैंक बैठे होंगे, ठीक है। सो इट विल मूव। अब क्या होगा? अब इसको साथ में देखते भी चलो। अब जो ऊपर ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और जो हैवी थे, हैवी क्यों है? क्योंकि वो ठंडे हैं, ठीक है। तो हियर वी हैव हैवी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो हैवी वाले हैं, अब वो क्या होंगे? हैवी वाला क्या होता है, अगर आपको पता भी होगा, हैवी चीजें नीचे सेटल हो जाती हैं, और जो हल्की होती है, वो ऊपर फ्लोट करती हैं। So here these heavy molecules will come down. अब वो नीचे आएंगे, और ये जो छोटे बड़े बड़े जो हल्के हैं, they will move. Now you can see they are making kind of cycle. ऊपर नीचे. So this cycle is called convection cycle. This is a convection cycle. ठीक है? So this is how water or gas gets heat up. ठीक है?
पहले जो नीचे वाला है वो हीट होगा, वो लाइट होके फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से हैवी वाला नीचे आएगा। सो दिस साइकिल विल गो ऑन, वो जाती जाएगी। ठीक है। इसी कारण जब हम बॉईल करते हैं वाटर को या लिक्विड को, हमें बबल्स या जो है छोटे छोटे जो है गुब्बारे से दिखते हैं और वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज कन्वेक्शन। अब जो थर्ड मीडियम है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन डजंट नीड मीडियम। जैसे यहाँ पर मीडियम चाहिए ना, पानी कुछ गर्म होगा तभी हमें फील होगा। कंडक्शन में भी जो है हमारे पास क्या है, कोई आयरन रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम गर्म करेंगे तभी वो हमें हीट फील होएगी। हम जो अपने खाना बनाते हुए कड़छी स्टील की अगर हमने गर्म खाने में रख दी है, आफ्टर सम टाइम्स व्हाट वी नोटिस दैट इट इज नाउ हॉट। हम ये नोटिस करते हैं कि गर्म है ना, टच करने पे। सो वहां पर हमारा मीडियम आ गया, दैट वी कैन से लैडर। ओके, स्टील लैडर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा पानी जो है वो गर्म हो गया है, अगर इसमें हाथ डालोगे देन यू फील इट इज हॉट। बट इन केस ऑफ रेडिएशन देयर इज नो मीडियम। ओके, it doesn't require any medium, it still gives us heat. Can any one of you give me the example of radiation? Any of you? रेडिएशन कहाँ आपको जो है ऑब्जर्व होती है? I'm giving you a hint also. It's nature. It's in nature. I'm sorry. सन की जो हीट आ रही है वो कैसे आ रही है? हमें सन तो ऐसा नहीं है ना पास में खड़ा है, इट्स वेरी फार और अर्थ से बहुत दूर है। और इवन बीच में स्पेस भी है, एंड स्पेस हैज नो एयर, नो एटमॉस्फेयर, कोई मीडियम नहीं है, स्टिल इट इज कमिंग। ठीक है। सो लेट्स सी हियर, ध्यान से देखो इधर। दिस गर्ल इज सिटिंग, कहाँ बैठी है? धूप में बैठी है, ऑन आयरन बेंच। ठीक है, धूप में आयरन बेंच में बैठी है काफी देर से। नाउ व्हाट हैपन हियर, हर फेस टर्न रेड। उसका फेस एकदम लाल हो गया धूप में बैठ के। ठीक है, क्यों बैठ के लाल हो गया? व्हाई इट हैपन? इट इज ड्यू टू Sunrise. Sunrise. सन। ध्यान से देखो, सनलाइट के कारण हो रहा है। इट इज ड्यू टू विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज देयर? Radiation. ईशान। कोई बीच में हमने ना पानी फेंका ना हमने जो है कोई गर्म अपने ऊपर जो आयरन रॉड लगाई है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट। इट इज नॉट टचिंग अस। ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, दैट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड इट्स बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब क्या होता है, शी टच दिस आयरन रॉड और आयरन बेंच की बैक रेस्ट को ये टच करती है एंड शी फेल्ट इट इज ऑल्सो हॉट। तो वो इमीडिएटली अपना हाथ हटा लेती है। ठीक है। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? कौन से ट्रांसफर? यस, Conduction. एक बच्चा बोलो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। हाँ, थर्ड बेंच बॉय। यस बेटा। Conduction. Conduction, because here you can say it's solid, it's not liquid. ठीक है। So here you can say it is due to conduction. ठीक है। Now इतनी गर्मी लगी थी, now she went inside in a air conditioned room. Now you can see she is smiling, she is happy. ठीक है, अब उसको गर्मी नहीं लग रही, she is here. अब जो AC की जो हवा आ रही है, it is because of what? Which mode of heat transfer here? Convection. कन्वेक्शन। सो हमने इसके स्टोरी से कौन कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े? कंडक्शन, रेडिएशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मुझे एक फटाफट बताओ, जो कन्वेक्शन साइकिल है वो हमें नेचर में कहाँ देखने को मिलती है? I can hear some are giving good answer. Raise your hand जिसको पता है।
रेज योर हैंड सो दैट बाकी बच्चों को भी समझ आए. फर्स्ट बेंच गर्ल, यस. फर्स्ट बेंच गर्ल, यस बेटा. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. क्या बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज? सी ब्रिज कब होती है? डे टाइम में होती है, नाइट टाइम में होती है? डे टाइम और लैंड ब्रिज ड्यूरिंग नाइट टाइम, है ना? अब मुझे बता दो, फटाफट फटाफट बताओगे सब, ठीक है? अब मुझे बता दो, इसमें जो कोल्ड एयर है, ठीक है, वो कहाँ होती है और हॉट एयर कहाँ होती है? जो है कहाँ पर होती है कोल्ड एयर? लैंड पे होती है या सी पे होती है? कोल्ड एयर, कोल्ड एयर. श्योर हो सब? तो हवा ठंडे से गर्म की तरफ जाती है, गर्म से ठंडी इलाके की तरफ आती है, ये बताओ. ओके, अभी इसको छोड़ो एंड टेक आउट योर असाइनमेंट नाउ. टेक आउट योर असाइनमेंट. एवरीवन इज हैविंग देयर असाइनमेंट विद देम? यस. डू यू हैव अ रेज योर हैंड अगर आपके पास असाइनमेंट है. नहीं है? ओके, assignment. Okay, so we have done few questions already. Okay, so now here you are going to tell me basic things. Okay, now we have this pan. Okay, and in this pan we have water. This में पानी डाला हुआ. ठीक है? So what we are going to do, we are going to heat this water. Okay, now here I am going to give you a question here. So mode of heat transfer in A case, in B case, and here in the case of C. So just raise your hand for the A. A के लिए जिसको आंसर आता है raise your hand. फटाफट. Yes. A में कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? वाटर इज गेटिंग, क्या हो रहा है? वाटर. यस, लास्ट बेंच, लास्ट बेंच. यस, खड़े हो जाओ बेटा, आ जाओ, कम फास्ट. आगे आओ, आगे आके बताओ, सुनाई नहीं दे रहा. Case of A, the mode of is Convection. convection. Can you tell me why? You are right, beta. Can you tell me why? Q2 particles. Water. Sorry, repeat. Q2 particles. Heat particles. Particles. No, beta, water molecules. Because here water is getting heated up, and here you can see this that lighter particles are now moving in upward direction, and denser, heavy particles are coming down. है ना? Is it right? That's good. Sit down, beta. Sit down. Now, who knows about the B part? The mode of heat transfer in B. Raise your hand. Raise your hand. Now, yes, girl. Yes, girl. Here, I think 6th or 7th bench. आ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ कॉर्नर में जो है. Yes, आ जाओ. Conduction. Conduction. Now, can you tell me why it's conduction? Sorry. Solid. And here, if we, अगर हम वैसे ही डायग्राम बनाए जो हमने अभी समझा था. So here the molecules. तो इसमें भी क्या होगा बेटा? Firstly, this molecule will get heated up. Okay. फिर ये heat transfer करेगा second molecule, and then this process will go on. Yes. Yes. Okay. Sit down.
Now we are left with the C. Who will tell me about the C? Now we are left with the only one. So just raise your hand. C का क्या आंसर होगा? Now I want from B boys team. सिर्फ boys team से मैं जानना चाहूंगी सर जिसमें boys बैठे हैं फर्स्ट रोज में, फर्स्ट 4 में से होगी. Yes, फर्स्ट 4 जो बेंचेस है उसमें जो बॉयज बैठे हैं उनमें से कोई एक बताओ, नहीं तो मैं खुद ही बुला लूंगी. Yes, first bench. Yes, बेटा. Radiation. Radiation. Yes. So answer is radiation. तो यहाँ पर हमें कोई मीडियम नहीं दिख रहा. ओके, so it's because of radiation. So I hope it is pretty clear to everyone about these three mode of heat transfer. Yes. अच्छा, अगर सबको कंडक्शन क्लियर है हैंड रेज करो. If it's clear, conduction is clear to everyone. Okay, that's good. Convection. Okay. Radiation. Okay. So that's good. So next time we will continue this. Okay. So now it's over, students. Okay, bye. Bye.